God bless you, Pastor. مسیحا کے مبارک اور جلالی نام میں آج شب پھر آپ تمام مسیح خداوند کے لہو سے خریدے ہوئے مومنین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ خواہ آپ ہمارے ساتھ اس اسکائپ آئی ڈی پر کرائسٹ ویژن یورپ پر ہیں یا ہمارے ساتھ لائیو فیس بک پر ہیں یا ہمارے ساتھ ایش ایف ایم ریڈیو پر اس وقت خداوند کے مقدس کلام کو سن رہے ہیں یا واٹس ایپ گروپس میں اس بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں، میری دعا ہے خداوند آپ سبوں کو ڈھیروں برکات سے نوازے اور اس بے رنگ و بو معاشرے میں اپنے علم کی خوشبو بنا کر مہکاتا رہے اور آپ زمین کے نمک اور دنیا کے نور کا اہم ترین کردار ادا کر سکے، اور خدا کرے کہ میں اور آپ دلہا کے آنے کے لیے اور اس کے ساتھ جانے کے لیے اپنے آپ کو فلی تیار کر سکیں تاکہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ جانے والے ہو سکیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، آنے والا آنے کو ہے، پس لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ یہی سبب ہے کہ ہم بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب یعنی خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یوں ہم 13 باب تک پہنچے اور بہت کچھ اور ہے جس کو ہم نے سیکھنا ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں، اور ہر بار جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم اس کلام کے وسیلہ سے خوب برکت پاتے اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہم مکاشفہ 13 باب کی 13 آیت تک ایک ہفتہ پہلے پہنچے تھے۔ آج میں آپ کے ساتھ مل کر اس 13 باب کی 14 اور 15 دو آیات کو تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، اور اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ عزیزو، ہم دو خاص حیوانات کی بات کر رہے تھے، ایک وہ جو سمندر سے نکلا، جو قوموں اور امتوں سے ظہور پذیر ہونے والے ایک پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما کی طرف اشارہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ روم میں سے پرانے بادشاہوں میں سے جو مر گئے تھے ان میں سے کوئی ایک ہوگا جس کا زخم کاری یعنی موت ہو چکی تھی، اور وہ پھر سے جی اٹھے گا، جلایا جائے گا اس کو خداوند کے حکم کے مطابق۔ اور یہاں پر ابلیس کو بھی جو اختیار دیا گیا، اصل میں کچھ وقت کے لیے خدا نے اس کو یہ اختیار دیا
کہ جنہوں نے مسیحا کی آمد ثانی سے پیشتر مسیح یسوع کو اپنایا نہیں، ان لوگوں کو مصیبت کے زمانے میں گیہوں کی طرح پھٹ گئے۔ تو ایک تو وہ حیوان تھا جو سمندر سے نکلا، جو کسی پولیٹیکل لیڈر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور حیوان جو زمین سے نکلا، اس کی بات ہو رہی تھی، اور ہم نے بات کی کہ یہ ایک جھوٹا 2 نمبر نبی ہوگا، اور در حقیقت یہ 3 ہیں، اور یہ 3 کاپی کر رہے ہیں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کی۔ اور وہ کیسے؟ کہ جو مین ابلیس ہے، اس نے اپنا اختیار دیا اس دوسرے حیوان کو جو سمندر سے نکلا، اور پھر یہ دوسرا حیوان اس جھوٹے نبی کو جو مخالف مسیح ہے اس کو اختیار دیتا ہے، اور یوں گویا وہ ایک جھوٹی تثلیث پریزنٹ کرنے اور پیش کرنے کی وہاں پر کوشش کریں گے، اور اس سے بھی بڑے بڑے کام۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ جو مخالف مسیح ہوگا وہ بڑے بڑے نشان اور عجیب کام کرے گا، یہاں تک کہ ایلیا یا الائجہ یا ایلیاس نبی کی طرح ایک ہی شخصیت کی بات ہو رہی ہے، آسمان سے آگ نازل کرے گا۔ اور ہم نے ان تفاصیل پر غور کر لیا ہے گزرے ہفتے میں، لیکن یاد کیجئے کہ جو عجیب کام اور نشان ہیں وہ خدا کی حضوری کی لازم نہیں کہ ضمانت ہو۔ سن رہے ہیں کہ جو نشان اور عجیب کام ہے ضروری نہیں کہ وہ خدا کی حضوری کی علامت اور اس کی ضمانت ہو۔ بہت سارے لوگ آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور ان فیوچر مصیبت کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس سے دھوکہ کھائیں گے۔ اسی لیے تو یہ کتاب ہمیں قبل اس وقت دی گئی ہے ٹیکسٹ بک کے طور پر کہ آپ اس کی سٹڈی کریں، کیونکہ یہ سب کچھ ہونے کو ہے، اور اس سے امتحان میں پاس ہونے کے لیے انتہائی لازم ہے کہ اس کتاب کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ اس لیے ہم آیت با آیت غور کرتے ہیں اور سلولی غور کرتے ہیں تاکہ ہمارے پلے کچھ پڑے۔ اور پھر میں یہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ نشان اور عجیب کام تو جو فرعون مصر کے فالگیر اور نجومی تھے انہوں نے بھی کیے تھے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو پائے، اور ماضی رفتہ میں بہت دفعہ ایسے ہوتا رہا، ایون کلیسائی تاریخ میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہے۔ لیکن خیر، ان بڑے بڑے عجیب کاموں اور نشانات کے دکھانے کے پیچھے جو مین مدعا اور مقصد ہوگا وہ یہ کہ اس حیوان کی جو پولیٹیکل لیڈر کے طور پر ہے اس کی تابع فرمانی کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اور اس کی ستائش اور اس کی پرستش کی جائے۔ اور ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ وہ کیسے اور کیوں کر۔
माजी में हम बहुत कुछ देख भी चुके हैं। और अगर मैं यूं कहूं कि कैसे उस वक्त लोग उस अबलीस की ताबे फरमानी में या मुखालफे मसीह की फर्मा बरदारी में हो चलेंगे, कैसे लोग जिंदा खुदा को भूल कर उसकी पैरवी करेंगे, जबकि जिंदा खुदा खुदाबंदों का खुदाबंद मौजूद है। तो मैं आपको बताना चाहूं तो यह बात हकीकत पर मबनी है कि यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं, उनको मालूम है कि खुदा का वजूद है, लेकिन खुदा की फर्मा बरदारी उतनी नहीं करते जितनी वो हुकूमत की और कवानीन की करते हैं। मैं जिस मुल्क में रहता हूं वहां पर हुकूमत ने कहा कि इससे ज्यादा लोग चर्च में ना आए, और क्या मजाल के एक भी उससे ज्यादा आए, बाकी लाइव अपने घरों में इन प्रोग्राम्स को देखते हैं। टैक्सेशन और ये सब कुछ चल रहा है। हमारे यहां कोविड-19 के बावजूद स्कूल खुले हैं, और जब तक हुकूमत वक्त की तरफ से उनको कोई रेड सिग्नल दिया नहीं जाएगा, वो इसको कंटिन्यू रखेंगे, इवन लोग मर भी रहे। तो हुकूमत की फर्मा बरदारी खुदा की फर्मा बरदारी से ज्यादा हो रही है। तो सेम इसी तरह से जब मैं मुस्तकबिल की बात करता हूं कि उस हैवान की परस्तश के लिए कहा जाएगा, तो इसी तरह से हम उसकी परस्तश को भी स्टडी के दौरान होते हुए देख रहे हैं। जो मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ में होंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत मसाइल, बहुत दुखों से गुजरना होगा, इवन अपनी गर्दन भी कटवानी होगी, और फिर जाकर वो कुर्बे इलाही को हासिल कर पाएंगे। सिर्फ वो जो मसीह यस्सु को उस दौरान भी पाएंगे और पछताएंगे अपने माजी पर, उनकी बात कर रहा। अब यहां पर हम इस हकीकत को देखते हैं कि ये निशान और अजीब काम तो होंगे, वो गुमराह भी करेगा जमीन के रहने वालों को, और फिर वो ये कहेगा, यानी ये तीसरा हैवान जो है, जो जमीन से निकला झूठा नबी, वो ये कहेगा कि उस हैवान की, यानी जो दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल लीडर है, उसकी तुम परस्तश करो, लेकिन केवल इसके कि ऐसा हो, कहा जाएगा कि तुम उसका बुत बनाओ। मैं समझता हूं कि यूरोपियन ममालिक में, इवन दुनिया भर में, जहां पर गैर मुस्लिम लोग हैं, जिन जिन ममालिक में मैं गया हूं, वहां पर कई बड़े बड़े हीरों के बड़े बड़े मुजस्मे बने हुए हैं। इवन अगर कोई प्रेसिडेंट्स भी हुए जिन्होंने कोई खास रोल प्ले किया, तो उनके भी मुजस्मे बने हुए हैं। मसीह खुदाबंद से बहुत पहले, यानी तकरीबन 7 सदियां पहले, 700 साल के बलज मसीह, जब नबूकदनेस्सर का वक्त था, तो उसने भी एक मूरत बनाई। अगरचे वो मूरत नबूकदनेस्सर की सूरत पर नहीं थी, वो एक जनरल मूरत थी। और आप जानते हैं, चूंकि आप खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, कि उसने ये हुक्म सादर किया था कि इस मूरत के आगे सिजदा किया जाए, वरना तुम्हारा काम तमाम
कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि क्या हो। मैं पहले भी कह चुका कि रोमी दौर में डायोक्लिशियन जैसे ऐसे शाहाने रूम गुजरे जिन्होंने अनल हक में खुदा हूं होने के दावे किए, और लोग उनके आगे झुकने वाले भी हुए। तो माजी की तारीख में ये ग्लिम्प्स, ये झलकें इस तरफ इशारा करती हुई हमें नजर आती हैं कि मुस्तकबल करीब में मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ में मुखालिफे मसीह का एक बुत बनाने के लिए कहा जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि वो चांदी का होगा, सोने का होगा, लोहे का होगा। आई डोंट नो, इट इज नॉट रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन बुत बनाया जाएगा। ये 14 आयत तकरीबन 12 और 13 आयात के साथ कुछ मिलती जुलती है, लेकिन जब मैं 15 आयत पर जाता हूं तो यहां पर लिखा हुआ है, उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का, यानी इस तीसरे को उस पहले वाले हैवान मुखालिफ मसीह पॉलिटिकल लीडर का जो बुत बनाया जाएगा, इसको इख्तियार दिया गया कि उस बुत में रूह फूंके, उसको इख्तियार दिया गया। और यह इख्तियार इसलिए दिया गया ताकि वो जो हैवान का बुत है वो बोले, बात करे, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश न करेंगे उनको ये वाला यानी तीसरा हैवान झूठा नबी उनको कत्ल भी करवाए। दुनिया में बड़े बड़े रोबोट बनाए गए। इवन कई साल पहले ऐसे रोबोट तैयार हुए जो बात करते हैं। आप सवाल पूछें, आपके सवाल का जवाब देंगे। और इवन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, और खासकर जो कार्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं, उनमें ज्यादातर रोबोट काम करते हैं, मशीन्स काम करती है। इंसानी मशक्कत अब बहुत जगहों पर खत्म हो गई। तो रोबोट ऐसे हैं जिनके पीछे या जिनके अंदर ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, उनको इस तरह से फीड किया गया कि जैसे फीड किया गया वैसे ही वो बात भी करें और बोले भी। जब इस हैवान के बुत की बात की जा रही है और इसमें रूह के फूंकने की बात की जा रही है और उसके बोलने की बात की जा रही है, मैं जब स्टडी कर रहा था तो यह बात सामने आ रही थी कि यह कोई जदीद सिस्टम होगा जो शायद अभी हमारी समझ में नहीं आएगा। इवन मुसीबत के जमाने के सेकेंड हाफ में भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो विदाउट क्राइस्ट जीसस होंगे सोचेंगे कि यह बोलता कैसे है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा। है बुत, चल फिर नहीं सकता, आपकी सुन सकता और जवाब दे सकता है, और इस बुत को एक खास मकाम पर नस्ब किया जाएगा।
खा वो एनिमेटेड हो या जैसे भी होगा, ये बुत उस वक्त के लोगों की तवज्जो को गिरफ्त करेगा ताकि लोग जाने कि जी ये बोलता है और बड़े बड़े अजीब काम होते हैं, धोखा और फरेब, ये सब कुछ वहां पर होगा। मुझे दौरान स्टडी याद आ रहा था, मुझे अगर मैं गलती ना करूं तो शायद जर्मनी में जब म्यूनिक एयरपोर्ट से उतरकर यूएसए की तरफ जाने लगा तो जो ही सीढ़ियां उतरे, नीचे उतरा तो नीचे एक तो लाउडस्पीकर पर आवाज आ रही थी खातून की, और फिर वो नीचे एक खातून खड़ी बातें कर रही थी और इशारे भी कर रही थी। और मैंने कहा पता नहीं वो अनाउंसमेंट कर रही है कि किधर जाए, उधर जाओ, उधर जाओ, किधर जाओ। और जूं जूं मैं उसके करीब, क्योंकि सब लोग उधर से जा रहे थे, जूं जूं उसके करीब, क्योंकि उधर पास से गुजरना था, जाता चला गया तो कुछ और इंकशाफ होता चला गया। और जब चंद फुट के फासले पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो खातून नहीं है, वो एक कार्डबोर्ड है, बिल्कुल खातून की शबीह पर उसको काट कर बनाया गया। लेकिन क्या कमाल है इस मीडिया का कि वो खातून बाकायदा थी तो एक इमेज, लेकिन उस इमेज में हाथ हरकत करते हुए उसने ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है और वो बात कर रही है, होंठ हिल रहे हैं। और मैं उस कार्डबोर्ड के पीछे भी यूं करके देख रहा था और यूं करके भी देख रहा था। मैंने कहा देखो जरा, थोड़ी दूर से मुझे बिल्कुल खातून लग रही थी, लेकिन जब करीब गया तो नो, इट वॉज ओनली ए इमेज ऑफ ए वुमेन, बट शी वॉज नॉट ओरिजिनली। बहुत सारे फरेब और धोखे इस दुनिया में आज भी हैं और मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ में भी होंगे। ज़बूर 135 135, और इस ज़बूर 135 की मैं 15 और 16 आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। इन आयात में लिखा हुआ है, कौमों के बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, और उनके मुंह में सांस नहीं है, कान है पर वो सुनते नहीं। दुनिया दे बुत सारे झूठे ते नाचीज ने। ये बुत कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हम जा हाजिर है। आप जर्मनी में हैं, वो वहां पर मौजूद है। हां, आप बेल्जियम में हैं, वो वहां पर मौजूद है। आप पाकिस्तान में वहां पर मौजूद है। मैं एक स्वीडन के एक छोटे से इलाके में हूं। ही इज हियर, क्योंकि वो omnipotent, हम जा हाजिर खुदा है, और उसकी हुजूरी महसूस होती है कि खुदा अपने लोगों के बीच में मौजूद है। उसका पाक रूह हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे कुलूब में, हमारे दिलों में है। यह खुदा के कलाम का फैसला है। और फिर मैं दानियल की किताब और उसके 9 बाब और उसकी 27 आयत की तरफ आपकी तवज्जो लिए चलता हूं। दानियल 9:27 9:27। और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा
और निस्फ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी। और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाकया होगी। तो दानियल ने मसीह खुदावंद से बहुत पहले नबुवती रूह में इस बुत के नस्ब किए जाने की बात ऑलरेडी की है। और जब मैं मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस का मुतालिया करता हूं, मती की मार्फत लिखी गई इंजील और इसके 24 बाब और इसकी 15 आयत को देखता हूं, मती 24 की 15, तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, पढ़ने वाला समझ ले। खुदा के कलाम को पढ़ने वाला पढ़ेगा तो फिर समझ आएगी ना। अगर सिर्फ कलाम को पढ़छत्ती की जीनत बनाया हुआ है, कुछ भी पल्ले नहीं पाएगा। Bible is not to keep only in the bookshelf. The word of God is to keep in our hearts. यह है जो दाऊद नबी ने भी कहा है। और फिर जब मैं थिस्सलुनीकियों के खत में जाता हूं, 2 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में, तो वहां पर लिखा है, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। अब ये किस बात की तरफ इशारा है? आखिरी बात करता हूं, और वो ये कि मुखालिफ मसीह इस्लाम और इसराइल दोनों के बीच में एक कंप्रोमाइज करवाएगा। और आप जानते हैं कि फलस्तीन और गजा और इसराइल का सदियों से यह झगड़ा चल रहा है। इवन मैं कई ऐसे फलस्तीनियों को मिला हूं जो यहां पर है, और वो कहते हैं कि इसराइल का तो कोई नामो निशान तक नहीं था, फलस्तीन शुरू से था, लिहाजा उन्होंने यहां आकर कब्जा किया, काबिज हुए हैं। ये उनके कमेंट्स है, बयानात है। लेकिन एनी हाउ, फिलिस्तीनियों यानी इस्लाम और इसराइल के बीच में हमेशा से यह जंग रही। मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम जहां पर है, इनके थोड़ा पीछे शिमाल की तरफ एक वसी मैदान है। अब मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम कहां पर है, वहां पर पहले क्या था, अभी मैं इस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन इन दोनों के पीछे शिमाल की तरफ एक ऐसा मैदान है, शायद कुछ फरलांग के फासले पर, और मुफक्करीन ये बताते हैं कि जो मुखालिफ मसीह होगा वो आकर इसराइल और इस्लाम दोनों के माबैन सुलह करवाएगा और अहले यहूद के लिए एक अलग से हैकल बनाएगा। जिस मकाम पर पहले वाली थी
वहां नहीं, वरना झगड़ा पैदा हो जाएगा। और वो दूसरी तरफ एक हैकल बनाकर इन दोनों को, फरीकैन को, वो राजी करने की कोशिश करेगा। लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। और इस सेकंड हाफ के इख्तिताम पर इस हैकल में जहां पर यहूदी लोग कुर्बानियां कर रहे होंगे और अपने तरीके से रसूमात अदा कर रहे होंगे, ऐन उस वक्त ये मुखालिफ मसीह वहां आकर अपनी इमेज, अपना बुत, अपनी मूरत मकदस में, हैकल में आकर नस्ब करेगा। ये वो बुत है जो बोलेगा भी, और फिर वो सुअर की, जो अहले यहूद के नजदीक खरूज की किताब के मुताबिक बुत परस्ती भी ममनू है, वो वहां पर करेगा। और सुअर नापाक जानवर है, उसकी कुर्बानी वहां पर चढ़ाकर खुदा के गजब को मौका देगा कि नरसिंगों और मोहरों और प्यालों के सबब से जो आफात आई, अब उन की असल सूरत देखी जाए। और यहां हम देखते हैं कि फिर जबरी तौर पर कहा जाएगा कि इस बुत की पूजा करो, मुखालिफ मसीह को अपना खुदा मानो, इसकी मानो। माजी में भी जैसे मैंने कहा ऐसे होता रहा, और कई जगहों पर आज भी ऐसे होता है। लोगों ने जिंदा और हकीकी खुदा को छोड़ दिया, पैसा को, नफसानी और जिस्मानी ख्वाहिशात को, इज्जत मर्तबा मुकाम को, पेंशन सिस्टम को अपना खुदा बना लिया। इसलिए खुदा कोविड-19 के जरिया से लितर लगा रहा है, ताकि लोग खुदा की तरफ रजू लाएं। और हैरानगी इस बात की है कि यह सब कुछ होने के बावजूद कौमें और उम्मतें सोचती हैं कि कोविड-19 खत्म कैसे होगा, कब होगा, कौन सा वैक्सीन तैयार किया जाए, मरीजों को कैसे बचाया जाए, डॉक्टर्स को कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, और कैसे हमारी इकोनॉमी फिर से बहाल हो, हमारी फ्लाइट्स फिर से चलना शुरू कर दें, हमारे मुल्कों का दिवालिया ना हो। कैसे यह मुमकिन हो सकता है कि आप करें? लेकिन अफसोस कि जो असल तरीका है, अरे रब के हुजूर झुक जाओ, अपने और अपने खानदान और अपनी कौम के बिहाफ पर अपने गुनाहों का इकरार करो, तो वो खुदा जो सुलेमान और दाऊद का खुदा है, जो नैनवा का और इस्राइल का और यूना का खुदा है, वो आज भी अपने लोगों की तकसीरों और खताओं को मुआफ करने पर कादिर है, और एक नई उमंग और एक नई उम्मीद अपने लोगों को देने के लिए तैयार है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम इस खुदा के कलाम के मुताबिक कहीं धोखे में ना रह जाए, फरेब ना खाएं, बल्कि हम अपने खुदाबंद को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं। इस दुनिया में बहुत से झूठे और 2 नंबर मसीह हैं, आए हम बचकर रहें। शैतान बड़े जोरों पर काम करता है, आए हम उसको अपने जीवन में स्टेप इन ना होने दें। जो हुआ सो हुआ,
but we need to be careful for near and far future. खुदावंद अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आज मुझे भी और आपको भी भारी बरकत अनायत फरमाए. God bless you.